Hello and namaskar दोस्तों. I welcome you all at Crack Grade B. Friends, in the video lecture series of industrial relation, labor laws and social security, from today onwards we will cover various topics related to the trade union. So before moving ahead, I would like to tell you that in last year or in 2017 exam, there were 3 questions from this trade union topic. And in this video lecture series, we will cover trade union, objective, various definitions given by the various scholars, forms, types, roles of the trade union, then various theories related to the trade union, and in last, we will discuss the important aspects of the Trade Union Act 1926. So today we will discuss objective, definitions and forms, types, roles and classification of the trade union in this video lecture. Before moving ahead, I would like to inform you that we have prepared a study material for all these 3 subjects: industrial relation, labor law, social security, general accounting principle and Indian economy. If you want to purchase this material, it will cost you 1699 for all these 3 material. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle only, it will cost you 1499. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security only, it will cost you 1299. So friends, इस वीडियो के नीचे लिंक में सैंपल दिया है मटेरियल का, आप उसको जाके वहां से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। और अगर आप ये मटेरियल हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कीजिए। वहां पे मटेरियल सेक्शन में ईपीएफओ सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और अभी लॉकडाउन की वजह से we are not able to send the hard copy of this material, तो we have make a provision that आप इसको अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं as soon as आप जैसे इस मटेरियल को खरीदते हैं। What is the content of this video lecture? I have already talked, but in short, I would like to tell you that by seeing this video, we will able to understand what is a trade union, what is its objectives, forms, function, classification and roles of the trade union. और आप ये बात जान लीजिए कि ये भी जितने भी टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन हैव 2 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और वन बाय वन धीरे धीरे हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, कंप्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट बिफोर मूविंग अहेड वी विल सी दैट व्हाट इज द ट्रेड यूनियन। यूनियन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, it is called union. But what is trade union? If there is a word trade, that means it is related to the industries. Okay, so what is the meaning of the trade union? If we discuss this word in context of industries and trade, that the trade unions are organizations that try to protect the rights of the worker. और वो कौन से राइट्स होते हैं, जब इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी दैट व्हाट टाइप्स ऑफ राइट्स ही इज टॉकिंग अबाउट। एक और वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, इट इज प्रेशर ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन? देखिए फ्रेंड्स, आप अगर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप।
प्रेशर ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली में ये गवर्नमेंट में इंटरनली नहीं होते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, बट एक्सटर्नली दे पुट प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन एज अ प्रेशर ग्रुप? एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ द प्रेशर ग्रुप जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन। नाउ वी विल मूव फर्दर। ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन, बट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट मीनिंग दिया है, डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, बट ऑल द डेफिनेशंस जो हम लोग इसमें समझेंगे वो रिलेटेड है जो ऑब्जेक्टिव या जो मीनिंग आपको मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में बताया। ठीक, जैसे सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे, सिडनी एंड बीट्राइस वेब। इसने बोला अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स for the purpose of maintaining or improving the condition of their working life। ठीक, यहां पे कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स कौन हो गए? वो हो गए आपके वर्कर्स, ठीक है। और उनका पर्पस क्या था? मेंटेनिंग और इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जब आगे देखेंगे तो राइट्स के बारे में भी बात करेंगे। नाउ एक डेफिनेशन जो है वो दी आपकी जीडीएच कोल ने। जीडीएच कोल ने डिफाइन किया ट्रेड यूनियन को एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन वन और मोर ऑक्यूपेशन। इसने एक चीज और ऐड कर दी, ट्रेड यूनियन किसी एक इंडस्ट्री से भी हो सकती है, किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी हो सकती है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना ट्रेड यूनियन का, तब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि इसने वन और मोर ऑक्यूपेशंस क्यों बोला। An association carried on mainly for the purpose of protecting and advancing the members' economic interest in connection with their daily work। अब तीन वर्ड याद रखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डेली वर्क और एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन वन और मोर ऑक्यूपेशंस। इस डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूं तो इसने ये बोला कि वर्कर्स या वेज अर्नर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ऐसा समूह जो कई जगह, कई सारे ऑक्यूपेशंस में, कई सारे कामों में इन्वॉल्व हैं, और उनका जो एसोसिएशन का मेन पर्पस है वो चाहते हैं प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग द मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वेज, बोनस, वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर फॉर द वर्कर्स। तो ये सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वर्कर्स के इन कनेक्शन विद देयर डेली वर्क, जो वो रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। तो ये बोला जीडीएच कोल ने। नाउ जब हम वैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन आएगी, बट यहां पर इस वीडियो में इस डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल है और रिलेवेंस है। और यहां पर हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ने क्या डेफिनेशन दी है। A trade union is any combination of person, whether temporary or permanent, primarily for purpose of regulating the relations between workers and employers, or between workers and for imposing restrictive condition on the conduct of any trade business, and include the freedom of two or more trade unions। ये डेफिनेशन इसने दे दी। इसने सिंपल ये बोला कि ट्रेड यूनियन को फॉर्म किया जाता है प्राइमरीली, टेम्परेरी भी हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं, प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। उसमें वो कुछ इंपोज करता है रेस्ट्रिक्टिव। एक्चुअली थोड़ी सी डेफिनेशन नेगेटिव फॉर्म में जा रही है। वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है कंडीशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। मतलब ये हुआ कि अगर हैजर्डस कंडीशन है तो ट्रेड यूनियन वहां पे अपने राइट्स को लेके फाइट कर सकती है। दैट मींस वो कोई हैजर्डस बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक।
लास्ट में इसने बोला कि फेडरेशन ऑफ टू और मोर यूनियंस, तो यूनियंस में कई सारी यूनियंस होती हैं, उनकी फेडरेशन भी हो सकती हैं और वो अलग अलग भी हो सकती हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द सी forms of trade union. Friends, there are three forms of the trade union, that is classical, neoclassical and revolutionary. अब इसमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस आप यहां समझने की कोशिश करना. According to the classical forms of trade union, a trade union main objective is to collectively safeguard the interest of its member in given socio-economical political system. Trade unions are the realistic expressions of the needs, aspirations and wishes of the working classes. तो जो क्लासिकल टाइप की ट्रेड यूनियंस थी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उनके मेंबर्स को सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सेफगार्ड प्रदान करना और उनका प्रोटेक्शन करना. उसके बाद आपका नियो क्लासिकल आया. क्लासिकल के बाद उसमें उन्होंने कुछ चीजों पर और ज्यादा डिस्कशन करना शुरू कर दिया. जस्ट लाइक उन्होंने टैक्स रिलीफ की बात करना शुरू कर दिया और रेजिंग सेविंग रेट्स. तो ये जो फॉर्म है, ये थोड़ी सी वेस्टर्न टाइप की फॉर्म है, जो इंडिया में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है. कभी भी वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा और बोल देगा कि भाई इन दोनों में से क्लासिकल और नियो क्लासिकल फॉर्म कौन सी है. तो क्लासिकल फॉर्म केवल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करता था, और नियो क्लासिकल में जो क्लासिकल के ऑब्जेक्टिव थे उसमें उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव करके कुछ इश्यूज को और ऐड कर लिया, जस्ट लाइक टैक्स रिलीफ, रेजिंग सेविंग रेट्स. उसके बाद और बड़ा चेंज आया फॉर्म्स ऑफ ट्रेड यूनियन में, और वो आया कि रिवॉल्यूशनरी टाइप की ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई. इनका पर्पस सिंपल था, वायलेंस और फोर्स मीडियम से अपने रूल्स को एस्टेब्लिश करना, जस्ट लाइक मार्क्सिस्ट. जब हम इसके बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म क्या होती है. तो फिलहाल आप तीन तरह की फॉर्म याद रखना, एक क्लासिकल है, एक नियो क्लासिकल है, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द सिस्टम. जो चाहते थे इस तरह का चेंज, दे आर कॉल्ड द रिवॉल्यूशनरी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ट्रेड यूनियन. अब देखते हैं दोस्तों अगला. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस की. क्लासिफिकेशन देखिए कई तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. We will see different types of classification, just like classification is based upon the ideology, classification based upon the agreement, classification based upon various forms. We'll discuss in subsequent slides. The first we will see classification based upon the ideology. Ideology क्या कहती है कि यूनियन, ट्रेड यूनियन को जो फॉर्म किया गया है उसका पर्पस क्या है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी. तो सबसे पहली यूनियन है, मतलब आइडियोलॉजी का मतलब यहां ये हुआ कि आपने किसी ट्रेड यूनियन को फॉर्म किया, ठीक है. अब उसका पर्पस क्या है. पर्पस तो मैंने जनरल पर्पस तो बता दिया कि मेडिकल, हेल्थ, वेज हाइक, जॉब सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो बट यहां पर आइडियोलॉजी से मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन है और उसकी क्या आइडियोलॉजी है, मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है. जस्ट लाइक रिवॉल्यूशनरी, गो बाय द वर्ड्स, ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और इनका जो टारगेट था ना, दे बिलीव इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू वन. दे वांट अ चेंज इन द पावर एंड अथॉरिटी, यूज ऑफ द फोर्स. देखिए ये इस तरह की यूनियंस जो है ना, वो समझते हैं कि आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया है, जो कैपिटलिस्टिक टाइप की सोसाइटी थी पुराने जमाने में, जब इंडस्ट्रियल क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, तब इस तरह की यूनियंस का बहुत ज्यादा फॉर्म हुआ, रिवॉल्यूशनरी यूनियंस का. रीजन क्या था, उस समय जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो वर्कर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे. तो वर्कर्स कहते थे कि भाई मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कैपिटलिस्ट लोगों से, ओनर से किसी भी एंगल से कम नहीं हूं.
तो इस तरह की जो यूनियन थी वो उस टाइम में फॉर्म हुई थी और इनका सीधा पर्पस था कि जो आजकल का सोशियो और इकोनॉमिक डिफरेंस है एक वर्कर और एक कैपिटलिस्ट के बीच में, उसको खत्म करो और पावर और जो अथॉरिटी कैपिटलिस्ट टाइप की सोसाइटीज को दी गई है और जो इकोनॉमिक डिफरेंस उनके और एक वर्कर्स के बीच में है उसको फोर्सफुली खत्म करो। ज्यादातर लेफ्ट यूनियन इस तरह के काम करते थे। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? रिवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना। ठीक। अब एक यूनियन आप की आइडियोलॉजी हो सकती है कि वो सोचे कि भाई मुझे रिफॉर्म लाना है, रिफॉर्मिस्ट टाइप की वेलफेयर यूनियंस, कि मुझे लोगों का, वर्कर्स का भला करना है। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी लेके ट्रेड यूनियंस बनती थी वो होती थी आपकी रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर टाइप यूनियन। इनका मेन पर्पस था दे वर्क फॉर द चेंज इन रिफॉर्म्स विद इन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये नहीं कहते थे कि जो सोसाइटी है उसको चेंज कर दो, पावर से उखाड़ दो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर रहकर ये काम करते थे। मान लिया कि कोई कमेटी बना दी, जो मैंने वर्कर्स पार्टिसिपेशन मॉडल में बताया था आपको, उस कमेटी के थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज में वर्कर्स को इन्वॉल्व करा दिया और वही बात ट्रेड यूनियंस ने भी मान ली। तो इस तरह की जो सोच ट्रेड यूनियन की थी वो आपकी रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर टाइप ट्रेड यूनियंस कहलाती थी। एक थी आपकी अपलिफ्ट यूनियन। ये थे, इनका तो काम था कि ये एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे कि भाई आप जल्दी से जल्दी मतलब इन सारी चीजों को चेंज करो, अपलिफ्ट करो, मतलब हमारे जो दर्जा है या हमारी जो कंडीशंस है उनको ऊपर उठाओ। लेकिन इनका जो पर्पस था वो रिवॉल्यूशनरी टाइप का नहीं था। ये तो कहते थे कि भाई वेलफेयर एक्टिविटीज आप दो, धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी दो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एजुकेशन के बारे में बात करते थे। बट अपलिफ्ट यूनियन जो कहती थी वो एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स चाहती थी, कहती थी वर्किंग कंडीशन हमारी चेंज करो, टैक्सेशन सिस्टम को आप चेंज करो और पॉवर्टी को हटाओ। बट नॉट जस्ट लाइक द रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म। अपलिफ्ट था, एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स चाहते थे, बट नॉट लाइक द रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, हम यहां पर कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन जो आइडियोलॉजी के हिसाब से जिनको हमने विभाजित किया है। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट यहां क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ट्रेड। 2017 में इस जनरल यूनियन पर एक क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे उसने उठा के यहां से क्वेश्चन को रख दिया था इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो 4-5 तरह की यूनियन में यहां बताऊंगा, प्लीज पे योर अटेंशन और इसको ध्यान से सुनना। और मैं बता रहा हूं इस 5 मिनट के अंदर जितना मैं आपको समझा दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, अगर आपने इसका मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट यहां से ले लिया। यहां पर हम समझेंगे ये 4 तरह की यूनियन जिनको ट्रेड के व्यवसाय व्यापार के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी क्राफ्ट यूनियन, एक होती है जनरल यूनियन, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल यूनियन। अब यहां पर आप मेन आइडिया लेना, देखिए क्राफ्ट यूनियन क्या होती है। क्राफ्ट यूनियन होती है, अ क्राफ्ट यूनियन में कवर all workers engaged in that craft in particular plant unit and industry or in different plants of a particular industry located in a particular area in different industries located in particular area। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन में यहां जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझो कि कोई इंडस्ट्री है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग काम कर रहे होंगे। एक इंडस्ट्री है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग काम कर रहे होंगे। मान लो कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई क्लर्क है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई मेंटेनेंस का वर्कर है, प्रोडक्शन में है कोई। तो इस तरह के जो वर्कर्स क्लासिफाइड हैं अलग अलग, कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई क्लर्क है और कोई स्टेनोग्राफर है। तो इंडस्ट्रीज को पिक्चर में ना लेते हुए इनका जो ऑक्यूपेशन है, इनका जो व्यवसाय है, इनका जो काम है, उसके हिसाब से जो यूनियन फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन। फॉर एग्जाम्पल क्रेन ऑपरेटर ने अपनी एक यूनियन बना ली,
तो वो आपकी हो गई एक क्राफ्ट यूनियन फॉर द क्रेन ऑपरेटर। स्टेनोग्राफर्स ने बना ली, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन फॉर द स्टेनोग्राफर। तो पर्टिकुलरली not it is not based upon the industry, it is based upon the skills and occupation of the वर्कर्स कि वो किस इंडस्ट्री में किस तरह का ऑक्यूपेशन काम कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, वो हम देखते हैं। अब क्राफ्ट यूनियन के बेनिफिट क्या थे, देखिए बेनिफिट देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्राफ्ट यूनियन जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में से जो एक सेम ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं उनके द्वारा फॉर्म की जाती है। तो इसका देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहां पर देखिए बेनिफिट इसका कि अगर कोई यूनियन है तो एक स्किल्ड मेंबर की हो गई क्राफ्ट यूनियन। मैंने बताया जैसे स्टेनोग्राफर ले लिया, स्टेनोग्राफर, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि एक स्किल्ड मेंबर हो गए। अब जब ये स्किल्ड मेंबर अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनकी प्रॉब्लम यूनिक होगी कम से कम कि भाई एक ही तरह के लोग हैं ये। दूसरा, इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है इनकी प्रॉब्लम्स में वो नहीं होगी, बॉन्डिंग अच्छी है, यूनिक टाइप की प्रॉब्लम होगी, और इसलिए इनकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अगर ये मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तरह के लोग हैं ये। सबसे बड़ी बात है कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड नहीं है। तो ये इनका बेनिफिट है कि एक तरह के लोग हैं, आपस की बॉन्डिंग अच्छी है, यूनिक है, और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, प्रॉब्लम एक ही तरह की होगी, इसलिए इनकी जो बार्गेनिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब इसके वीकनेस देखते हैं। वीकनेस में क्या है, देखिए स्किल मेंबर्स को केवल इन्होंने लिया, मैंने बताया अभी कि क्राफ्ट यूनियन जो है एक पर्टिकुलर मेंबर होते हैं किसी इंडस्ट्रीज के। दूसरा, अनस्किल्ड को उन्होंने छोड़ दिया, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। स्किल्स लोग तो बहुत कम होते हैं, फ्यू इन नंबर्स। तो सबसे बड़ी चीज है कि अनस्किल्ड जैसा पार्ट आपने छोड़ दिया और स्किल लोगों को केवल रिप्रेजेंट करने का मौका दिया ट्रेड यूनियन में। तो इनके स्मॉलनेस के कारण सारी जो प्रॉब्लम होती है प्लांट लेवल पर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी मैनेजमेंट को। तो ये इसका ड्रॉबैक है, स्मॉलर है, अनस्किल्ड को कवर नहीं किया। सेकंड, सबसे बड़ी चीज अभी मैंने बताई कि ऑक्यूपेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनती है। अब मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी है और वो चेंज हो गई, क्रेन का ही ले लिया, क्रेन ऑपरेटर है कोई, और वो टेक्नोलॉजी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से क्रेन को ऑपरेट करता था, और फर्दर 20 साल के बाद वो क्रेन ऑपरेटर की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो इसकी स्किल भी चेंज हो गई, स्किल भी चेंज हो गई। जब स्किल चेंज हुई तो स्किल चेंज होने के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ जो क्राफ्ट यूनियन थी वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्किलनेस जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रही है, और चेंज होने के साथ जो क्राफ्ट यूनियन है वो भी चेंज होगी। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। ठीक, तो आपको क्राफ्ट यूनियन समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर स्किल्ड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री से नहीं। एक इंडस्ट्री में अगर क्रेन ऑपरेटर है तो वो जितनी भी क्रेन ऑपरेटर्स होंगे ना, उन्होंने अपनी एक यूनियन फॉर्म कर ली। टैक्सी ड्राइवर्स ने अपनी, सबसे बड़ा एग्जांपल टैक्सी ड्राइवर्स की यूनियन, इसको कहेंगे हम क्राफ्ट यूनियन। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे अभी याद आया कि टैक्सी ड्राइवर्स की यूनियन जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन एक है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, और एक कई डिफरेंट सिटीज में है, लेकिन ऑक्यूपेशन क्या है, सेम है, टैक्सी चला रहा है। तो उनकी जो यूनियन होगी ना, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन। यहां से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जनरल यूनियन की। जनरल यूनियन go by the words at the other extreme in terms of the range of workers represented in the general union which has members drawn from all trades। सबसे बड़ी चीज याद रखना कि सारे जो ट्रेड्स होते हैं ना, उसमें से इनके मेंबर्स चूज किए जाते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका में ज्यादा प्रेवलेंट है, और ये जो क्राफ्ट टाइप की यूनियन है ना, ये इंडिया में नहीं, वेस्टर्न और यूएस में ज्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू इंडिया। जनरल यूनियन सिंपल,
कि इस तरह की यूनियन में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को लेके फॉर्म किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनियन. कैसे? द मेंबरशिप ऑफ दिस यूनियन cover workers belonging to the steel industry and the engineering industry such as the cable tube locomotive and tin plate etc. तो एक शहर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से इन्होंने सारे मेंबर्स को लेके एक यूनियन बना ली. तो इस तरह की यूनियंस को कहते हैं हम जनरल यूनियन. अब ब्लू कलर और व्हाइट कलर में क्या डिफरेंस है ये आप देख लीजिए. ब्लू कलर और व्हाइट कलर्स को आपने मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको इसके बारे में डिफरेंस तो पता ही होगा. तो यूनियंस which represent workers employed on the production floor or outdoor trade such as the construction, वो आपके blue collar workers होते हैं. white collar workers होते हैं those employed in shops and offices. कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बाहर काम कर रहा है, वो ब्लू कपड़ों में काम करेगा. सिंपल सी बात आप ये याद रखो, वेस्टर्न टाइप का कॉन्सेप्ट है. और जो ऑफिस में बैठते हैं जनरली वो व्हाइट कलर होते हैं क्योंकि उनके कपड़ों पे धूल नहीं जाती है, व्हाइट है, व्हाइट कलर्स टाइप की जॉब कर रहे हैं वो. तो जो जिस तरह के वर्कर्स हैं, व्हाइट कलर वर्कर्स हैं, अगर वो अपनी यूनियन को फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाइट कलर्स यूनियन. और ब्लू कलर जो बाहर काम कर रहे हैं ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन में, जस्ट लाइक आपका, हम इंडिया से लेते हैं. इंडिया में अगर आप डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल लेंगे तो जो बाइक पर लेके घूम रहा है, पिज्जा को देने जा रहा है और जो पिज्जा लेने जा रहा है, तो अगर उसको हम कहेंगे तो इट इज कॉल्ड द ब्लू कॉलर वर्कर. लेकिन जो अंदर उसका मैनेजर बैठा हुआ है, जो अंदर लोग काम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द व्हाइट कॉलर्स बिकॉज कि वो अंदर काम कर रहे हैं, शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, उनका बाहर से कोई रिलेशन नहीं है. तो अगर बाहर वाला जो ब्लू कॉलर वर्कर है वो अपनी एक यूनियन फॉर्म कर लें दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर यूनियंस, सॉरी ब्लू कॉलर यूनियंस. और जो अंदर काम कर रहा है वो कहलाता है आपका व्हाइट कॉलर यूनियंस. ठीक है, दिट इज अ डिफरेंट, उनके वर्क के हिसाब से है. नाउ इंडस्ट्रियल यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन है, इसको आप देखिए. इन दिस टाइप ऑफ यूनियन ये इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है. सबसे ज्यादा इंडिया में इंडस्ट्रियल टाइप की यूनियंस को ही मिला जाता है. अब इसमें क्या है, एन इंडस्ट्रियल यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स which link all categories of worker in any one industry. एक इंडस्ट्रीज में कितने भी टाइप के वर्कर होंगे, रिगार्डलेस द डिफरेंस इन क्राफ्ट, वो किस तरह का काम कर रहा है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, उसकी ग्रेड क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है. अगर इन सारी चीजों को निकाल कर अलग करके केवल जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं उससे जो यूनियन फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूनियन. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम कर रहा है, चाहे वो मैनुअल वर्कर्स हों, जो चाहे वो बाहर से लाके काम कर रहे हों, या खुद के वर्कर्स हों जो खेतों में काम कर रहे हैं, तो जो अपनी एक यूनियन फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर यूनियन. अब इस तरह की यूनियंस का एडवांटेज क्या है, इस तरह की यूनियन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैन कवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर इन सिंगल एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर. आपने कई सारे वर्कर्स को, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, मेल, फीमेल, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, उनको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, उनकी स्ट्रेंथ को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनकी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया. तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपने काफी बड़ा एरिया, काफी बड़ी पॉपुलेशन, काफी बड़े मेंबर्स से बना के एक यूनियन को फॉर्म किया. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रियल यूनियन होती है ना, वो काफी बड़ी होती है और इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ज्यादा मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं मैनेजमेंट के अंदर और ज्यादा लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन. ओके, अब देखते हैं अगला. नाउ इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट. क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट, देखिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. Another basis on which labor agreements are sometimes identified on the basis of the type of agreement. जनरली ये इंडिया में प्रिवेलेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको देख लो क्या क्या होता है. इन क्लोज शॉप टाइप का जो यूनियन होता है उसमें क्या है, वेयर मैनेजमेंट एंड यूनियन एग्री दैट यूनियन वुड हैव सॉलिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वर्कर. सिंपल सी बात है, यहां पर वर्कर्स को रिक्रूट करने का जो ठेका है वो ट्रेड यूनियन को दे दिया आपने. इंडिया में तो कहीं ऐसा होता नहीं है, ट्रेड यूनियन तो रिक्रूट करते नहीं है कहीं भी, तो इन्फ्लुएंसर करते हैं.
कहीं भी जाके कि भाई आप मेरे बंदे को रख लो, ये कर लो। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है जिसमें एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट या मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि आपको अगर कोई रिक्रूटमेंट करनी है तो आप थ्रू ट्रेड यूनियन करेंगे और ट्रेड यूनियन को ठेका दे दिया। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है, यूनियन होती है, बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोज शॉप यूनियन। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे। अब एक चीज देखो कि ये वर्कर है और इसकी कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है और उसमें कोई मैनेजर है। तो मैनेजर या मैनेजमेंट ने इन ट्रेड यूनियंस को वर्कर्स को रिक्रूटमेंट का पावर दे दिया कि आप भैया अपने हिसाब से चूज कर लो वर्कर को कि कौन कौन मेरे यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह की जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो एग्रीमेंट बेस पे फॉर्म किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्लोज शॉप। नाउ यूनियन शॉप, if there is an agreement that all newly recruited worker must join the union within fixed period after the employment, such a union is called a union shop. अगर कोई वर्कर कहीं भी रिक्रूट हुआ है और उसको बोला गया है कि जैसे ही आप एम्प्लॉय होते हो ऑर्गेनाइजेशन के, आपको यूनियन को ज्वाइन करना है एक सर्टेन फिक्स टाइम में। मतलब ये हुआ कि कोई बंदा आया, उसने किसी इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद यूनियन ने बोला कि 3 महीने के अंदर आपको मेरे साथ मेंबरशिप करनी है, ट्रेड यूनियन ने बोला। तो इस तरह की जो यूनियन होती है ना, दैट इज कॉल्ड यूनियन शॉप यूनियन। यूनियन शॉप ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट है, फिक्स किया। यहाँ तो उसने ठेका ही दे दिया काम करने का कि भाई अब वर्कर्स को रिक्रूट करो। यहाँ पर उसने बोला कि आप जब भी ज्वाइन करोगे एम्प्लॉयमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको मेंबरशिप लेनी है। तो ये हो गया यूनियन शॉप। याद रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। प्रेफरेंशियल शॉप यूनियन में क्या होता है कि अगर कोई भी वैकेंसी को अगर फिल किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बोलेगा यूनियन मेंबर में से ही आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी उसको। भाई आप कोई भी कर रहे हो, अगर कोई यूनियन का मेंबर है और किसी वैकेंसी को फिल करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो उस यूनियन का मेंबर है जो यूनियन उस इंडस्ट्री से अटैच है, तो इस तरह की जो वैकेंसीज को फिल किया जाएगा उसमें बोलेगा कि मेरा यूनियन का मेंबर को आप प्रेफरेंस दो। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल शॉप यूनियन। नाउ मेंटेनेंस शॉप यूनियन, इसमें बोलता है कि कंपलसरी मेंबरशिप नहीं है इन द यूनियन बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट, लेकिन जब आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तब तक आपको मेरे साथ मेंबरशिप रखनी पड़ेगी, आपको यूनियन का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये उसकी मर्जी है कि रिक्रूटमेंट के बाद हिज मेंबरशिप रिमेन कंपलसरी राइट थ्रू आउट हिज टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। लेकिन जब तक वो टेन्योर में है तब तक मेंबरशिप है, उसके बाद अगर वो छोड़ देता है तो मेंबरशिप की जरूरत यहां पर नहीं है। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस शॉप ट्रेड यूनियन। एजेंसी शॉप में क्या है, अगर कोई भी वर्कर रिक्रूट होता है किसी एम्प्लॉयर के यहां किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यूनियन बोलती है कि आपको मुझे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। और ये एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में। यूनियन बोलता है कि एम्प्लॉयर से कि अगर आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो तो आपको मुझे कोई सम या अमाउंट देना पड़ेगा एज ए सब्सक्रिप्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दिस मेंबर। अगर वो मेंबर नॉन यूनियन मेंबर है तो, अगर वो ट्रेड यूनियन से ही लिया जा रहा है तो वो मेंबरशिप नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, ट्रेड यूनियन यहां पर ये बोल रही है कि अगर कोई भी नया बंदा एम्प्लॉयर रिक्रूट कर रहा है तो उसको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट यूनियन को देना पड़ेगा। ये होती है एजेंसी शॉप। अब सबसे बड़ी बात है ओपन शॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर लास्ट ईयर 2017 में क्वेश्चन भी आया था। इस तरह की मेंबरशिप में कुछ भी जरूरी नहीं है, ये सबसे लीस्ट डिजायरेबल और फ्री है। इसमें क्या बोलता है कि नो वे कंपलसरी आइदर बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट। आप कभी भी आओ, मेरे साथ मेंबरशिप की आपको जरूरत नहीं है।
आपका मन करे तो आप ले लो, नहीं तो नहीं जरूरत है। दिस इज कॉल्ड ओपनशिप। इसमें एजेंसी शॉप, मेंटेनेंस शॉप और प्रेफरेंशियल शॉप में उसने, ट्रेड यूनियन ने एम्प्लॉयर के ऊपर एक प्रेशर जमा के रखा कि ये सारी कंडीशंस है अगर आप नए बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, मेरे बंदे को प्रेफरेंस दो। मेंटेनेंस में अगर आपको रखना है तो आपको उसको मेरा मेरा मेंबरशिप देना पड़ेगा। एजेंसी शॉप में उसने बोला कि आप मुझे एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अगर आपने किसी बंदे को रिक्रूट किया है। बट ओपन शॉप में इस तरह की कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। इट इज फ्री। आप रिक्रूट हो चाहे एम्प्लॉयमेंट दो, मत दो, निकालो, बाहर करो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दिस इज अ लीस्ट डिजायरेबल। अगर ये चीज होगी तो फिर यूनियन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिस इज लीस्ट डिजायरेबल। बट आपको याद रखना है कि ओपन शॉप यूनियनिज्म होता क्या है, क्योंकि इसमें पिछली बार क्वेश्चन आया है। ठीक, 3 क्वेश्चन थे 2017 में, 3 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन कहां से यूपीएससी ने। फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर स्टडी मटेरियल, that in general accounting and principle we have covered all these topics which we are going to discuss in video lecture series also. In industrial relation and labor laws we have covered all these topics, and in Indian economy we have covered a static part with very simple concept, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मटेरियल जो है हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं बहुत ही रिलायबल रिसोर्सेज से, और 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो हमारे मटेरियल से इन सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ये सिलेक्शंस दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में सेलेक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।